What is supply? Now, can anybody define what is supply? Can anybody define what is supply? Ma'am, flow of goods and services Yes, from one place to another place. it is the flow of goods and services. So it has been defined under section 1, under section 7, subsection 1. We have already done what is supply. So supply basically refers to the supply of goods and services that are covered under CGST Act, right? So we have to define supply under sections. We have to define supply under sections. The term supply has been defined under section 7(1), 7 subsection 1. Of CGST Act, and it includes, now what does supply includes? We have to cover all those things. It includes, number 1, all forms of supply of goods and services, all forms. मैम स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रही मैम नॉट अच्छा, 1 minute बेटा, 1 minute, I'll do it again. अब है बेटा विजिबल? यस मैम यस मैम Yes, ma'am. You have to write down this definition of supply. All forms of goods or services, or both, such as sale, transfer. It includes everything. जो सेल हो रही है वो भी इंक्लूड करता है, जो ट्रांसफर हो रहा है वो भी इंक्लूड करता है, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज सिस्टम, सारे के सारे ये सप्लाई के स्कोप में आते हैं. लाइसेंस, रेंटल, लीज, or disposal of assets, or disposal of assets they are talking about, or agreed to be made for a consideration. Now what is consideration? Consideration means anything to be paid in return. Something in return. Anything, yes, something in return. It can be monetary also, as well as it can be non-monetary also. या तो वो पैसे से भी related हो सकता है, या तो वो उसके बदले हम कोई commodity भी exchange कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने barter भी लिखा हुआ है. So कोई भी supply तब मानी जाएगी जब वो consideration के लिए हो रही है. जब वो consideration के लिए हो रही है, that means for monetary or non-monetary benefit. So I have already covered everything. कि इसमें जो supply goods और services की लेंगे, it will include sale, transfer, barter exchange, license, rental, lease, disposal made, or agreed to be made. So this was the first definition of supply. First thing that is included in supply. Number two, it includes import of services. It includes import of services for a consideration. Import of services for a consideration, whether or not in the course or furtherance of business, पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा आपको कि कह रहा है कि सारी इंपोर्ट लेंगे सर्विसेज की फॉर अ कंसिडरेशन. जितना भी हमने सर्विसेज का इंपोर्ट किया है वो सारी भी इसमें हम लेंगे. देन सी थर्ड पॉइंट, बेटा दिस जीएसटी इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, और इसमें जो सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई
of goods and services, value of supply, ये सब बहुत broad topics हैं. मतलब इसमें इतनी depth है, but हम लोग को जो भी important है, I'll be taking only those points. The third is the activities specified in Schedule 1 made or agreed to be without consideration. Made or agreed to be made without a consideration. Now, this was 7(1) of CGST Act. Now we'll go into a little depth. Now I'll be telling you about Section 7(1) subsection A. Now we'll be talking about Section 7(1) subsection A. Section 7(1) subsection A. Now what does that include? Two conditions are required to be exceptions are stated under the Act. Now number one, it should be made for the consideration. अब इसमें दो बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं. सप्लाई पूरी कब मानी जाती है? When it is made for a consideration. Supply shall be made. Supply shall have been made for a consideration. Supply shall have been made for a consideration. And next, it shall be made in the course. It shall be made in the course or furtherance of business. बिजनेस एक्टिविटीज के रहते हुए वो चीजें हो रही हैं. बिजनेस को इनकरेज करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए सप्लाई की जा रही है. ऐसा नहीं है कि सप्लाई हमने एक बार करी और उसके बाद हमने वो सप्लाई करी नहीं. जैसे इसमें आई टेल यू एन एग्जांपल. अगर एक पर्सन ने अपनी ओल्ड टीवी कबाड़ी वाले को 3,000 की बेच दी, तो क्या उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे? एक पर्सन ने अपनी टीवी कबाड़ी वाले को बेच दी है 3,000 रुपए की, तो क्या उसको सप्लाई माना जाएगा? No, ma'am. No, ma'am. वाई बेटा? मैम क्योंकि वन टाइम है. वो बेच रहा है ना मैम, कोई सप्लाई तो कर नहीं रहा प्रोडक्ट्स की. वो बेच तो रहा है लेकिन वो वन टाइम है. जैसे हम लोग पार्टनरशिप या बिजनेस का फीचर करते हैं ना कि इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस. पढ़ते हैं ना बेटा कि रेगुलरिटी में वो चीज होनी चाहिए. तो इस केस में क्या है, वो चीज रेगुलरिटी में नहीं हो रही है. ये तो उसका टीवी खराब था, उसने एक बार बेच दिया. क्या वो रोज रोज सामान कबाड़ी वाले को बेच रहा है? या क्या वो उसका प्रोफेशन है? नहीं, उसका ओल्ड आइटम्स बेचने का कोई भी प्रोफेशन या धंधा नहीं है. तो इसीलिए उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, ऑल्दो इसमें कंसिडरेशन 3,000 रुपए का इन्वॉल्व है. अब दूसरा एग्जांपल आप देखिए. एक बिजनेसमैन है, वो फ्री गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जनरल पब्लिक को, तो क्या इसको हम सप्लाई मानेंगे बेटा? नो मैम, कंसिडरेशन नहीं है. यस, इसमें कंसिडरेशन भी नहीं है. एंड सेकंड थिंग, इससे कोई उसका बिजनेस बढ़ नहीं रहा है ना. इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं हो रही है जो उसके बिजनेस को आगे ले जा रही है, फर्दरेंस में ले जा रही है. बात समझे आप? नाउ इसका ये था सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 सब सेक्शन ए. अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन. ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो सेक्शंस में मैं आपका कवर कर रही हूँ बेटा, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है. अब मैम यूनिट शेड्यूल 1 क्या है? बेटा ये शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटीज ऐसी स्पेसिफाइड है जो आप बिना कंसिडरेशन के हम लोग ने पहले ही तय करी थी कि होंगी. अच्छा, ये ना इसमें बहुत शेड्यूल्स हैं. बस मैं आपको ऐसे ऊपर ऊपर से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वी नेवर नो ना क्या आ जाए. अदरवाइज ये सीए के टॉपिक्स हैं बेटा सारे. अच्छा, अब आपके सिलेबस में सिर्फ लिखा हुआ है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. ठीक है, आपके में लिखा हुआ है व्हाट इज सप्लाई. तो ये इसका हमको वो नहीं समझ में आ रहा है स्कोप की कितना बताना है. गेटिंग माय पॉइंट बेटा? एग्जाम में तो वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसीलिए मैं सारी चीजें थोड़ी थोड़ी कवर कर रही हूँ. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज सेक्शन 7(1) सबसेक्शन बी. दिस इज सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन. सप्लाई मेड फॉर कंसिडरेशन but not in the course of business. But not in the, इसका मतलब क्या हुआ बेटा इस लाइन का?
बेसिकली इसको Business कहते हैं, बढ़ नहीं रहा है Yes. इससे। नहीं ये देखिए बेसिकली मैंने यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा है ना, पॉइंट नंबर 2, ये इसका है। पर ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर बेटा? इसमें हमने कुछ ऐसी चीजें करी हैं जो हमने इंपोर्ट करी है सर्विसेज, लेकिन वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? अभी थोड़ा आपको बेटा ये डाइसीपन लगेगा, लेकिन ये अब जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने बाहर से कोई मशीनरी मंगाई, ठीक है, आपने कोई मशीनरी मंगाई, इंपोर्ट करी कोई मशीनरी, तो इसमें तो आपने कंसिडरेशन भी दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने इसमें कंसिडरेशन भी दिया, लेकिन वो मशीनरी आपकी कहीं ना कहीं बिजनेस से रिलेटेड बट इनडायरेक्टली, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई कराएगा ये पॉइंट। मैम सिर्फ सर्विस क्यों लिखा है, गुड्स या एसेट क्यों नहीं है इंपोर्ट? कहाँ पे बेटा, कहाँ पे? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लिखा हुआ है, जबकि मशीनरी तो मतलब एसेट में आ जाती है। यस, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। बेसिकली इसमें बेटा ये माना गया है जीएसटी में, जब मैं इसको कल देख रही थी, एक तो आपके पास देखिए कोई बुक्स नहीं है, ठीक है, आप जितनी भी बुक्स रेफर करोगे क्लॉजेस इतने ज्यादा डेप्थ में है, उसमें तो यही लिखा था सर्विसेज, लेकिन जब एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं या हम लोग जब कंप्यूटेशन में एग्जांपल्स पढ़ते हैं, तो उसमें था कि मशीनरी उन्होंने इंपोर्ट की है जो कहीं ना कहीं रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है बिजनेस से, बट इनडायरेक्टली हम उसमें कुछ पैकेजिंग एंड ऑल कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको जब खरीदा उस पे हमने क्या दिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये हम लोग एंट्रीज में पढ़ चुके हैं ना बेटा, जब हम कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उसमें Yes, कौन सी but- टैक्स देते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसीलिए उसको इसमें कंप्यूटेशन में कहीं ना कहीं इफेक्ट दिखाया जाता है। क्लियर बेटा? बेटा क्लियर? यस मैम। सो दिस इज बेसिकली सप्लाई। अगर आपको जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है आपके सिलेबस में, व्हाट इज सप्लाई, सो यू हैव टू मेंशन ऑल दीज सेक्शन एंड क्लॉजेस कि सप्लाई होती क्या है। क्लियर बेटा? अब आप लोग थोड़ी जर्नल एंट्रीज पहले आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सप्लाई वाली आप लोग को जर्नल एंट्रीज बच्चों ने बोली थी कि करा दीजिएगा। एंड परचेज वाली जो जर्नल एंट्रीज आप लोग ने असाइनमेंट भेजा है बेटा, आई हैव रिसीव्ड असाइनमेंट्स ऑफ ओनली 24 children. Okay, I'll name out those students at the end of my class. Now we come to journal entries. Journal entries of transactions on which GST is charged and is output GST and is output GST. Number 1, sale of goods or services. चलिए इसकी जर्नल एंट्री कौन कराएगा, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चलिए दो Cash to केसेस, sale. फॉर इंट्रा स्टेट सेल। चलिए बताइए बेटा, इंट्रा स्टेट के लिए बताइए एंट्री। मैम कैश या डेटर Purchase. वेरी to गुड, कैश output अकाउंट डेबिट, CGST. वेरी गुड। किस, क्या नाम है बेटा आपका? अरसलान. सॉरी, कम अगेन। अरसलान. अरसलान, वेरी गुड बेटा। कैश अकाउंट डेबिट अगर वो कैश सेल है, डेटर्स अकाउंट डेबिट अगर वो क्रेडिट सेल्स है, टू सेल्स अकाउंट, To टू output आउटपुट सीजीएसटी CGST. एंड टू output आउटपुट एसजीएसटी। ये हो गई हमारी पहली एंट्री। ओके, अब इसी को अगर हम फॉर इंटरस्टेट करें, Cash account. यस Debtor account. To Yes. sale. To output To IGST. output IGST. वेरी गुड, परफेक्ट एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। क्लियर बेटा? ये पहली एंट्री हो गई। अब आते हैं, दूसरा टॉपिक है रेंट रिसीव्ड। दूसरी हेडिंग है रेंट रिसीव्ड।
बताइए रेंट रिसीव्ड की क्या एंट्री होगी? इसमें एक ही चीज होगी, इंट्रा। एंटर तो होगा नहीं क्योंकि हम जहाँ काम कर रहे हैं वही हम रेंट देंगे, तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? कैश अकाउंट डेटर डेटर्स नहीं आएगा बेटा इसमें। अगर रेंट हमारी रिसीवेबल ड्यू है तो उसको कर देंगे रेंट रिसीवेबल, है ना। मान लेते हैं थोड़ी रेंट हमने अभी दी नहीं है, बाकी है हमारी रिसीवेबल टू रेंट रिसीव। वैसे रेंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है? कैश टू रेंट रिसीव्ड। जनरल एंट्री अगर हम करते हैं बेटा रेंट रिसीव्ड की, तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इसमें जुड़ जाएगा टू आउटपुट एसजीएसटी and to output CGST. CGST. Okay. Then third is commission or income received. Commission received, that is income. अब इस केस में क्या जर्नल एंट्री होगी? अगेन फॉर इंटर एंड इंट्रा। पहले करते हैं फॉर इंट्रा स्टेट कमीशन। इंट्रा स्टेट कमीशन की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, राइट। कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट CGST account and to output SGST account. बोलो क्लियर बेटा? यस मैम। ये था इंटर के लिए। अब हम लोग करेंगे इंटर के लिए। फॉर इंटर स्टेट कमीशन, फॉर इंटर स्टेट कमीशन जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। बोलो क्लियर? यस मैम। अब आते हैं नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेल्स रिटर्न। अगर हम सेल्स रिटर्न करेंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? वैसे हम सेल्स को क्या करते हैं बेटा? क्रेडिट। वैसे सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। अब अगर सेल्स रिटर्न होगा तो उसको क्या करेंगे बेटा? डेबिट। यस, इसको करेंगे डेबिट। तो इट विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST। जैसे मैंने बताया था इनपुट में रिटर्न के टाइम पे इनपुट क्रेडिट हो जाता है, अदरवाइज इनपुट को जल्दी करते नहीं है। इसी केस में आउटपुट यहाँ पे डेबिट हो रहा है क्योंकि ये सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST अकाउंट एंड टू डेटर्स अकाउंट। ये था इंट्रा स्टेट के लिए। अब करते हैं फॉर इंटर स्टेट। ये हमने मानी है क्रेडिट सेल्स। इसी तरह से आप कैश कर देंगे और इसी तरीके से क्रेडिट हम कर रहे हैं, इंटर स्टेट क्रेडिट। अगर कैश होती तो यहाँ टू कैश हो जाता। अब इंटर स्टेट क्रेडिट की एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST। यस, वेरी गुड। आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू डेटर्स यस। ये था अगेन क्रेडिट के लिए। इसी तरीके से आप लोग वाइस वर्सा कैश की कर लेना, तब डेटर्स की जगह दोनों में कैश आ जाएगा। डेटर्स की जगह दोनों में कैश आ जाएगा बेटा। अब इसी तरह कैश डिस्काउंट जो हमको अलाउ किया जाता है सेल्स के टाइम पे, कैश डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट क्यों अलाउ किया जाता है बेटा? सेलर बल्क हमको परचेज में, हाँ बेटा, बल्क परचेज के केस में होता है। नो, वो तो ट्रेड डिस्काउंट होता है। ये होता है ताकि इमीडिएट पेमेंट कर दे। ठीक है, जिसको भी हमने माल बेचा है उससे जल्दी पेमेंट के लिए हम उसको क्या देते हैं बेटा? कैश डिस्काउंट। फुल Clear पेमेंट के बेटा? टाइम पे।
सॉरी, मैम फुल पेमेंट के टाइम पर। यस, कि जल्दी मतलब हमको जल्दी पेमेंट कर दो, ठीक है। और बल्क डिस्काउंट पे हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। चलो, इसमें पहला केस, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ फॉर इंट्रा स्टेज, तो इसमें कैश डिस्काउंट क्या एंट्री होती है? कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। मैम क्रेडिट होगा। बेटा डिस्काउंट अलाउड है, फिर से सोचो, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है। मैम डेबिट और मैम डेबिट होगा मैम, क्योंकि डेबिट मैम होगा। हाँ, क्योंकि वो अलाउ कर रहा है ना, उसके लिए एक्सपेंडिचर है, उसका लॉस है। उसका क्या है बेटा? मैम लॉस है। यस, जो सेलर डिस्काउंट अलाउ कर रहा है कि भैया हम ठीक है तुमको 10% का डिस्काउंट दे रहे, तुम पेमेंट मेरी जल्दी करो, तो वो अलाउ कर रहा है, तो उसके लिए वो चीज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, लॉस है, तो उसको हमने एज इट इज डेबिट कर दिया, ठीक है। फिर एंट्री हो जाएगी आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट, इस तरफ लिखते हैं, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट एंड टू sundry debtors, टू sundry debtors और टू debtors। क्लियर बेटा? और अगर यही चीज इंटर स्टेट हो जाएगी, अगर ये पूरा ट्रांजैक्शन if goods and services were interstate, अगर यही चीज हमारी इंटरस्टेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा? कैश अकाउंट डेबिट, मैम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यस यस आउटपुट IGST अकाउंट, यस, वेरी गुड, एंड टू डेटर्स, यस मैम। वेरी गुड प्रांजल, वेरी गुड, टू sundry debtors। ठीक है बेटा? अब जैसे मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन आपको और अलग से बता दे रहे हैं, ये तो सेल्स की थी। मान लीजिए आपने लॉयर से सर्विसेज ली है, ठीक है, जैसे हम सर्विसेज पे बताते हैं ना, जैसे आपने पेमेंट करी है फीस की लॉयर को, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी हेडिंग मान लीजिए हम लोग एक एंट्री ये कर लेते हैं, पेमेंट ऑफ फीस, पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर्स, पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर्स। तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोफेशनल फीस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये रिवर्स चार्ज है, देखिएगा, अब ये कौन सा चार्ज है? रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज कौन सा चार्ज होता है बेटा? व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन GST? जो हमारे पास से जा रहा हो चार्ज। नहीं, हमारे मतलब इसमें क्या होता है, जो जैसे यहाँ पर हम फीस पे कर रहे हैं लॉयर को, तो हम इसमें GST लॉयर को दे देंगे कि गवर्नमेंट को हम देंगे? मैम गवर्नमेंट को हम लोग पे कर रहे हैं फीस। यस, रिवर्स मैकेनिज्म हमने क्या बताया था कि मान लीजिए ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ऐसे तो यहाँ पे फीस किसको दे देते? लॉयर को दे देते। मिस्टर ए फीस किसको दे देते बेटा? लॉयर को दे देते, और उसमें वो GST मिला के देते। तो उसके बाद इस लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये GST किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा। ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। ये कौन सा मैकेनिज्म है? नॉर्मल मैकेनिज्म, जिसमें GST ऐसे ही करा जाता है, जो सप्लायर है वो परचेजर से लेता है और फिर फर्दर जो है गवर्नमेंट को सेट ऑफ करके टैक्स देता है। लेकिन रिवर्स मैकेनिज्म में हमने आप लोगों को बताया था कि उस केस में जो जैसे अभी यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे जो लॉयर है जो सर्विस दे रहा है हम लोगों को, उस केस में हम उसको GST नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमने उसको सिर्फ फीस दी है, और GST पूरा का पूरा हम किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को दे देंगे। किसको देंगे? तो इस केस में ये दूसरी एंट्री हो जाएगी, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जिससे पेमेंट हो रही है। बोलो क्लियर बेटा? यस। ये भूलिएगा नहीं, ये रिवर्स मैकेनिज्म।
अंडर रिवर्स चार्ज। मैं लिख दे रही हूँ, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इसमें अलग से क्यों किया हुआ है। अंडर रिवर्स चार्ज, और रिवर्स चार्ज हम लोग का कौन सा होता है? रिवर्स चार्ज हमारा वो चार्ज होता है वेयर जीएसटी इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या बाय रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसको सेल्स या परचेज नहीं बोलते हैं किस केस में बेटा? मैम, इसको मतलब अंडर रिजर्व चार्ज ही बोलते हैं, मतलब सेल्स या परचेज में नहीं बोल सकते बेटा, इसको रिवर्स चार्ज बोलते हैं। एंड इससे रिलेटेड आप लोग का हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए कि व्हाट इज रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी। तो मैंने आप लोग को डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छा बताया था, तो आप भी वैसे ही प्रेजेंट करके रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन भी मैंने लिखी थी, वो लिख के आप लोग एक एग्जाम्पल में जर्नल एंट्री भी कोड कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ये जर्नल एंट्री अगर आप लोग ने एग्जाम्पल में दे दी तो और ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पूरा क्लियर हो जाएगा कि रिवर्स चार्ज में देखो उसने कैसे फीस का पेमेंट किया है। क्लियर बेटा? यस मैम। अब हम लोग देखो सेट ऑफ, जैसे हम आपको बार बार कह रहे थे सेट ऑफ होती हैं चीजें, हमने आपको बताया था ना चीजें सेट ऑफ होती हैं। जैसे जो इनपुट वाले टैक्सेस हैं और जो आउटपुट वाले टैक्सेस हैं वो सारे क्या किए जाते हैं? सेट ऑफ किए जाते हैं। अब सेट ऑफ कैसे होते हैं? सेट ऑफ किया जाता है इनपुट जीएसटी का आउटपुट जीएसटी से। भाई जितने हमने माल खरीदे हैं, परचेजेस पे हमारा सारा कौन सा था? इनपुट टैक्सेस थे, और सेल्स पे हमारे सारे कौन से टैक्सेस थे? आउटपुट टैक्सेस थे। तो इस केस में बेटा हम सेट ऑफ करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है? सेट ऑफ इनपुट जीएसटी को करते हैं आउटपुट जीएसटी से। ठीक है, इस सबसे पहले वी सेट ऑफ कंप्लीटली इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, फिर इनपुट आईजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, एंड इफ बैलेंस रिमेन्स इन इनपुट आईजीएसटी उसको अगेंस्ट करते हैं आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो बेसिकली देखो सबसे पहले सेटिंग ऑफ के स्टेप्स, हालांकि है नहीं आपके सिलेबस में, बट ये से चीजें इंटरेस्टिंग होती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ। सेट ऑफ, ये आज लास्ट टर्न है जिसमें हम लोग पूरा एंट्रीज का बढ़िया से डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। अगले टर्न से फिर हम आप लोग को पूरा यूनिट वाइज अब खत्म करेंगे चीजें। अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, ये हो गया सेट ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। अब इसमें पहली चीज क्या है? देखिए पहली चीज, सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी इज फर्स्ट सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। सबसे पहले हम इनपुट आईजीएसटी को सेट ऑफ किसके अगेंस्ट करते हैं? आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट। क्लियर बेटा? सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी सेट ऑफ होती है आउटपुट आईजीएसटी के अगेंस्ट। फिर दूसरी चीज, इफ इनपुट आईजीएसटी हैज अ बैलेंस, इफ मान लीजिए सेट ऑफ करने के बाद भी इनपुट आईजीएसटी अभी थोड़ा ज्यादा था तो उसका बैलेंस बच जाता है। सो इफ इनपुट आईजीएसटी हैज बैलेंस, इफ इनपुट आईजीएसटी हैज बैलेंस आफ्टर अबव सेट ऑफ, अगर उसका फिर भी बैलेंस बचता है सेट ऑफ करने के बाद, सो इट इज सेट ऑफ अगेंस्ट, it is set off against output, it is set off against output CGST and output SGST। इसको किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं? आउटपुट CGST and output SGST up to the available balance, up to the available balance। इनपुट आईजीएसटी बैलेंस करने के बाद भी बचता है तो उसको किसके अगेंस्ट सेट ऑफ करते हैं? आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी टू द अवेलेबल बैलेंस। ठीक है, तो बेसिकली इनपुट आईजीएसटी को फिर उसके बाद हम लोग ने ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। उसके बाद फिर किसकी बारी आ गई? इनपुट आईजीएसटी पूरा सेट ऑफ हो गया, इनपुट आईजीएसटी पूरा सेट ऑफ हो गया। अब हम लोग किसको सेट ऑफ करेंगे? वील सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी। किसको सेट ऑफ करेंगे? इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी। वील सेट ऑफ इनपुट सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, और लास्ट में वील सेट ऑफ इनपुट एसजीएसटी, सेट ऑफ
input SGST against, we'll set off input SGST against output SGST. ये सेट ऑफ के तरीके हैं। और उसके बाद अगर कोई बैलेंस आपका बचता है, बचेगा ही, जाहिर सी बात है, जो भी बचेगा आपका वो हमने आप लोग को एक दिन एक एग्जाम्पल में भी बताया था, वो आप जाके इंडियन गवर्नमेंट को पे कर देंगे। क्योंकि जैसे ही सप्लाई जनरेट हुई, आपकी लायबिलिटी टैक्स पे करने की ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को आ गई। तो आप चाहें चाहे ना चाहें, आपको वो बैलेंस जाके गवर्नमेंट को देना ही देना है। इसकी भी कुछ एंट्रीज होती हैं, जैसे मैंने ये लिखा है ऐसे ही इसकी बैलेंस की भी एंट्रीज होती हैं, पर हम लोग उतनी अब डेप्थ में नहीं जाएंगे बेटा। अब जो भी इसका बैलेंस आएगा वो जाके जो भी पर्सन है उसको जाके ये टैक्स पे करना पड़ेगा। बोलिए क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? यस मैम। अब एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, डायग्राम छोटा सा बना लीजिएगा आप लोग, इससे ये पता लगेगा आप लोगों को कि जो पहले सेंट्रल, जैसे इसमें CGST हम बार बार नाम लेते हैं और SGST नाम लेते हैं, तो पहले ऐसी कौन सी टैक्सेस थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायर टू GST लेता था और उसको क्लब करके हटा दिया गया है, और ऐसे पहले कौन सी टैक्सेस थी जो स्टेट टैक्स के अंडर आती थी लेकिन अब उनको सब CGST से, सॉरी ये GST से हटा दिया गया है। तो बेसिकली पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थी हमारी, इसके अंडर ये देखिए, मैं आपको ऐसे डायग्राम, ऐसे ही अपने एग्जाम में भी आप लोग प्रेजेंटेशन करिएगा बेटा। ये सारी चीजें जितनी भी हम, जैसे हमने रिवर्स मैकेनिज्म का बनाया था, ये बना रहे हैं, ये सारी चीजें आप लोग बना के, इससे ना चीजें क्लियर हो जाती हैं एग्जामिनर को देखते ही। मैम इनके आउटपुट GST ज्यादा है तो आउटपुट मान लीजिए लॉस में बेच रहे हैं, बेटा उसमें फिर एंट्रीज दूसरी होंगी। अब हम लोग बताते ना, इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। अगर हम जर्नल लेके बैठे तो बहुत भयंकर चैप्टर है जो मैं 12th में बच्चे करते हैं। ये 11th में ये चैप्टर है ना बेटा, 11th में ये चैप्टर अब ICSE बोर्ड में है, समझ रहे हैं आप? यस मैम। और ये चीजें आपके सिलेबस में देखिए, कहीं पे भी उसमें ये नहीं लिखा है सिलेबस में जर्नल, और ना ही पूछा जाता है। सो लेट अस अवॉइड नाउ। इतना आप लोग को मैंने समझा दिया, वो भी बहुत है, नहीं सिलेबस नहीं हो पाएगा बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके बेटा? यस मैम। अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो चलिए एक बार मैं आपको कॉलेज में सारी एंट्रीज करके बता देती, लेकिन इस केस में बेटा बहुत वो हो जाएगा डिफिकल्ट। अब आपके एग्जाम्स भी हैं, इसीलिए आप मेन मेन चीजें पढ़िए। अब देखिए, सेंट्रल टैक्स में 3 थे सबसे मेन, एक्साइज टैक्स, नेक्स्ट इज सर्विस टैक्स, and third is your customs tax। और यहाँ पर आपका हो गया एंट्री टैक्स, VAT, tax on lottery, luxury tax, advertisement tax। बोलिए क्लियर बेटा? इन सबको आप सब्स्यूम करके एक इन लोग ने GST बना लिया है। अब क्लियर हुआ बेटा? अभी हम लोग को बहुत चीजें पढ़नी है। जैसे अब देखिए छोटा सा एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, मेरे को बताइएगा। मान लीजिए ये ऐसी, दिस इज फॉर योर रिविजन, कह लीजिए जितना हम लोग ने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा। ये एक सप्लायर है एक, ठीक है, ये सप्लायर है, देखते हैं कौन आंसर देता है। और ये एक रिसीवर है गुड्स का, मान लीजिए B, ठीक है। सप्लायर ने कुछ इसको अब ऑर्डर मिला है, सप्लायर को B से ऑर्डर मिला है। ऑर्डर इसने कब रिसीव किया है? मान लीजिए 15 सितंबर 2020। नंबर 2, इसको थोड़ा सा एडवांस भी मिल गया है बेटा। ऑर्डर देते ही मान लीजिए उसने 10 लाख का ऑर्डर दिया, तो 10 लाख में उसने 3 लाख रुपए एडवांस पहले ही भिजवा दिए। फिर माल कब तैयार होके रेडी हो गया? गुड्स रेडी फॉर डिस्पैच, 25 तारीख को माल रेडी है डिस्पैच करने के लिए। नेक्स्ट, आपने बिल कब रेज किया है? इनवॉइस कब रेज किया है आपने? 28 तारीख को रेज किया है।
बिल कब रेज किया है आपने? 28 तारीख को। और आपकी गुड्स की डिलीवरी जो हुई है वो मान लीजिए रेडी तो थे, लेकिन अभी तक आपने डिलीवर नहीं किए। डिलीवरी आपने 4 तारीख को की है। तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा बेटा? 18 एडवांस। और बताइए, एक ने बताया है 18, क्या ये करेक्ट है? मैम 15। ऑर्डर रिसीव वाली डेट पे, ठीक है। और बताइए। मैम गुड डिलीवरी। और बताइए। अभी तक तीनों का गलत है। मैंने आपको क्या कंडीशंस बताई थी बेटा? कब हम मानेंगे सब? इनवॉइस किस दिन इनवॉइस आपने बिल वाला होगा। बनाया है? यस, किस दिन हमने आपको बताया था बेटा? देखिए आप भूल गए, मैंने तो कैसे छोटा सा रैंडम एग्जांपल लिया। सो टाइम ऑफ सप्लाई हमेशा वो माना जाएगा जब हमने इनवॉइस रेज किया, जब हमने बिल ऑफ सप्लाई रेज किया है। करेक्ट बेटा? या जब हमने एडवांस लिया है। लेकिन फिर मैंने आपको बताया था कि जो एडवांस अकाउंटिंग है जीएसटी में काफी कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, इसलिए उसको हटा दिया गया है। मान लीजिए इसमें 3 लाख रुपए मैंने आपको बताया एडवांस दे दिया गया, तो आपने बोला कि उस दिन को हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। नहीं, वैसे पहले वो क्लॉज था, लेकिन गवर्नमेंट ने अकाउंटिंग क्योंकि एडवांस की अभी जीएसटी में उसका कॉम्प्यूटेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसने वो चीज हटा दी है। तो बेसिकली जिस दिन हम इनवॉइस रेज करेंगे ना बेटा, उस दिन माना जाएगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। उस दिन क्या माना जाएगा हमारा? टाइम ऑफ सप्लाई। बोलिए क्लियर बेटा? मैम जो आप वो कह रही थी अर्लियर होगा तो होगा। हाँ, तो अर्लियर बेटा ठीक है, अर्लियर मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें आप कह रहे हैं सबसे ज्यादा अर्लियर कौन सा है, आप बताइए मेरे को। सबसे ज्यादा अर्लियर है आपका ऑर्डर रिसीव का डेट। करेक्ट बेटा? ठीक है, आपकी बात सही है। ऑर्डर मान लीजिए आपने ऑर्डर रिसीव कर लिया, बाद में बेटा सप्लाई कैंसिल हो जाए, फिर यस मैम। हो सकता है ना बेटा? तो उसमें मैंने लिखा था दिस और दिस और दिस। तो उस हिसाब से सबसे अर्ली क्या चीज हो रही है? सबसे अर्ली हमारा बिल, जिस दिन आपने बिल रेज किया है वो चीज है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? उसमें Yes, क्लॉजेज में आपकी 2 चीजें थी, या तो जिस दिन हमने इनवॉइस का बिल रेज किया है, या दूसरी चीज थी पेमेंट, या पेमेंट पहले मिल जाए। मैंने आपको बताई थी ये चीज। यस मैम, तभी पेमेंट वाला बोल दिया। यस, क्लियर बेटा? इतना क्लियर हुआ बेटा आज सबको? हम समझ रहे हैं, थोड़ा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, टफ है, थोड़ा आप लोग के माइंड में काफी क्वेश्चंस होंगे। आई विल टेक केयर ऑफ ऑल दोस क्वेश्चंस, डोंट वरी। ओके बेटा? मैम जो इंट्रा स्टेट जो होते हैं ट्रांजैक्शन, तो मैम उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, तो स्टेट गवर्नमेंट कितना % लेती है और सेंट्रल? 999 बेसिकली सारे पे 9 है। पर अभी हम लोग वो चार्ट अभी हम लोग करेंगे, क्योंकि वो अभी तक आपके सिलेबस में बेटा आया नहीं है। वो आप जब उसमें करोगे ना कि कितना कॉम्पोजिशन है, वो आपका यूनिट 4 में है बेटा। समझ गए बेटा? वो आपकी चीजें यूनिट 4 में है कि कितना टैक्स आपको देना है, क्या कॉम्पोजिशन है, कैसे हम लोग उसको रिटर्न फाइल करते हैं, ये सब है आपके में। मैम 5% भी होता है क्या जीएसटी? यस, किसी किसी कमोडिटीज पे 5% भी है। 0, 5, 12 मैंने आपको एक दिन रेट्स लिख के भी बताए। हाँ, मैंने आपको एक दिन रेट्स लिख के भी बताए थे। ठीक है बेटा? तो सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता लगती रहेंगी, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। ओके मैम, थैंक यू मैम। क्योंकि ये बहुत ब्रॉडर है बेटा, ये इतना ब्रॉड टॉपिक है कि जितना मैं कराऊं वो बहुत मतलब वो होता है। हर टर्न पे मैं एकदम चीजें ढूंढती हूँ, क्योंकि देखिए जो आपके कॉलेज से बुक मिली है ना बेटा आनंद पब्लिकेशंस की, उसमें है, बट उसमें कहीं पे भी सेक्शंस नहीं लिखे हुए हैं। और जीएसटी जैसे सब्जेक्ट अगर हम लोग बिना सेक्शंस के करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो इसलिए मेरे को मैटर